When there are only 30 days left, what do you think is the biggest mental trap students fall into? I feel like the biggest mental trap that most students fall into is trying to complete the syllabus. हम बचपन से क्या बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, तभी मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे. देखो, कैट एग्जाम इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट डूइंग सम थिंग्स एंड डूइंग देम राइट. अब क्वांट्स का जो कोर्स है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है. तुमको पता होता है 10 टॉपिक है और तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है कि यार ये 10 में से 5 टॉपिक बचे हैं. दिस आई थिंक इज द बिगेस्ट मेंटल ट्रैप, दैट क्वांट्स के मैंने ये सारे टॉपिक्स नहीं करे हैं, उस बात पर ऑब्सेस करना. यू हैव टू रियलाइज कि 3 सेक्शन होते हैं, VARC, DILR और क्वांट्स, और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सिर्फ क्वांट्स पे फोकस करते हैं और क्वांट्स में सबसे गलत बात पे फोकस करते हैं कि सब कुछ करना है. सब कुछ नहीं करना है. डू सम टॉपिक्स एंड डू देम रियली वेल so that you are able to pick the right questions and perform in the exam. So focus on all 3 sections and do not obsess over completing quants ka syllabus. That is the biggest mental trap that everyone falls into. At this stage, a lot of students start comparing themselves because कुछ महान लोग अपने mock scores online डालने लग जाते हैं. ठीक है. What do you have to say to people like that? ऐसे लोगों के बारे में मेरा सिंपल सा ये कहना है कि सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी प्रोफाइल अलग होती है, सबका एम्बिशन अलग होता है, सबको अलग कॉलेज में घुसना है और सबका टारगेट परसेंटाइल अलग होता है. तो तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ खुद से है. डू नॉट लुक एट एनीबडी एल्सेस स्कोर, जस्ट लुक एट योर स्कोर, focus on your score. It is your preparation. You are not preparing for them. Now let's talk about something serious. Burnout. Some students feel mentally exhausted right now, even though the exam is very close. Should they push through it or slow down and reset? I think you should rest when it's done. What do you think most students misunderstand about the actual exam day? Something that if they realize now could completely change how they prepare in the last 30 days. What a lot of people don't realize is that most of the people who give CAT exam come there unprepared. And a lot of people have not even given mocks. तो अगर तुमने सही से diligently prepare करा है, तुमने सही तरीके से mocks दिए हैं और तुम एग्जाम के दौरान प्रेशर नहीं लेते हो, तो usually you will end up scoring more in the actual exam than what you have scored in mocks. मॉक्स को लिमिटेड नंबर बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और वही बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. अब एग्जाम के दौरान तुम्हारे पास वो बच्चे भी हैं जो कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आए और वो बच्चे भी हैं जो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके आए और जिनने प्रेशर ले लिया और वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड यू डू नॉट टेक प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जाम, you will notice that you will end up scoring a higher percentile in the actual examination as compared to your mock scores. What's your take on daily routine at this stage? Do you think students should keep a strict study schedule or shift towards stimulating the actual exam timing and building rhythm around that? Stimulating बोल भाई. मैंने क्या बोला? Stimulate. वापस stimulate बोला? Stimulate. Can we take this clip in the actual video? Yes, so the main question is that should students focus on building a strict timetable so that they can build a rhythm around the actual exam timing? Absolutely. At this point of time, तुमको तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी लाइफस्टाइल 100% तुम्हारा जो स्लॉट होगा उस स्लॉट के अकॉर्डिंग ही बनानी है. तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारा वेकिंग, स्लीपिंग टाइम, तुम्हारा ईटिंग टाइम, ऑल ऑफ दिस हैज टू बी मैनेज्ड सो यू परफॉर्म द बेस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम. तो सिमुलेशन तुमको करना है एग्जाम का. हम क्या करेंगे ना, इस पर अच्छा वीडियो बना देंगे डिटेल में ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ इस बात को. When a student's mock scores are fluctuating wildly, one day they hit 95, next day it's 70. How do you think they should interpret it emotionally and strategically? What's the right mindset to hold when that happens? देखो, ऐसा है that while attempting the exam, you need to cultivate a certain level of indifference towards the result. देखो, अगर तुमने एक बार 95 परसेंटाइल हिट करा है तो you are certainly capable of hitting that 95 परसेंटाइल. अब ज़रूरी नहीं कि तुम कंसिस्टेंटली 95 परसेंटाइल हिट कर पाओगे. हो सकता है डिप हो जाए, 75 परसेंटाइल पे आ जाए, बट यू नीड टू डेवलप अ सर्टेन लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी टुवर्ड्स इट. देखो, तुमने अगर लो स्कोर किया तो पहली चीज़, तुमको उस बात से परेशान नहीं होना है. तुमको रूट कॉज फाइंड करा है कि मैंने क्यों लो स्कोर किया है. अब मोर ऑफन देन नॉट, लो स्कोर करने का कारण इज नॉट लैक ऑफ प्रिपरेशन, इट्स मोस्टली लॉस्ट फोकस. तुमने फोकस लूज कर दिया तो तुम परफॉर्म नहीं कर पाए. ये चीज़ होती है मोर ऑफन देन नॉट. अब तुमने फोकस क्यों लूज करा? मे बी इट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ पुअर स्लीप, और मे बी इट इज बिकॉज ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी. तुम एग्जाम में गए और तुम एग्जाम से डर गए. इस पॉइंट पे इंडिफरेंस बहुत हेल्प करता है. जब तुम केयर नहीं करते ना रिजल्ट के बारे में, तो तुम इमोशनली स्टेबल होते हो. तुमको एग्जाम में इस वाइट साथ में घुसना है कि यार यू आर अ डेस्परेट स्टूडेंट, आई हैव टू मेक इट वर्क, ये नहीं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी.
यू हैव टू गो इन विद दैट कोल्ड किलर वाइब कि यार मैं जाऊंगा और मैं फोड़ दूंगा. What's the most overrated advice that students are following right now? Something that sounds smart on paper but actually kills their momentum in the last month. I have seen a lot of people give advice कि लास्ट मंथ में तो चिल करना चाहिए. While I do agree कि a certain level of calm is important for this exam, but बच्चे क्या है ना, इसको escapism की तरह देखते हैं. वो उस चीज़ से दूर होने की कोशिश करते हैं. तुम यहाँ पे चिल डेवलप नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे कंपोजर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो. और कंपोजर होता है प्रेशर लेते आना. तो तुमको प्रेशर से दूर नहीं भागना है, तुमको प्रेशर से डील करना सीखना है. अब जिन टॉपिक्स को, जिन आइडियाज़ को तुम इतने समय से प्रिपेयर कर रहे हो, अब तुम अगर आखिरी महीने में उसे डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट एंड अप जेपरडाइजिंग योर एंटायर प्रिपरेशन. What would you say to someone who feels like CAT is their one shot at proving their worth? कैट जो है ना, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम है. इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि इसको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया जा सकता है. तुम अगर IIM बैंगलोर जाते हो और तुम IIM बैंगलोर की अगर एवरेज एज निकालते हो तो you would realize कि it is something around 26-27. Most people who have made it into IIM Bangalore have done it after multiple attempts. अब क्योंकि तुम multiple attempts दे सकते हो, तुमको थोड़ा क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होगा. What you need to realize is CAT can definitely make your career, but you can have multiple attempts to make that career. तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचो. इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. In the last 30 days, what's the highest ROI activity a student can do daily? Something that will directly improve their CAT score more than anything else. What I'd suggest is for you to have a pre-exam routine, something that can put you in that state of focus. जैसे पर्सनली मैं क्या करता था, जब मैं फर्स्ट टाइम कैट एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा था, उस पॉइंट पे मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई थी कि यार आफ्टर डूइंग अ फ्यू पुशअप्स आई फील अ लॉट मोर काम एंड अ लॉट मोर फोकस्ड. तो मैं जब भी कोई मॉक अटेम्प्ट करता था, वो मॉक अटेम्प्ट करने के 15 मिनट्स पहले आई यूज्ड टू डू 50 पुशअप्स एंड देन आई यूज्ड टू गो एंड गिव द एग्जाम. अब एक्चुअल एग्जाम डे आया. एक्चुअल एग्जाम डे मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि मैं इसको कैसे इस रूटीन को एग्जाम के दौरान करूँगा. तो जब मैं एग्जाम लिखने गया था तो वहाँ पे वो उल्टा टाइमर चलता रहता है. 20 मिनट्स बचे हैं, 15 मिनट्स बचे हैं. एट 15 मिनट्स आई रियलाइज कि यार आई नीड टू डू माई पुशअप्स इन ऑर्डर टू गेट इन टू दैट स्टेट ऑफ फोकस. एटलीस्ट टुडे तो मुझे परफॉर्म करना है, तो दैट पुशअप्स आर गोना हेल्प. एंड बिकॉज माई ब्रेन इज ऑल्सो एसोसिएटेड डूइंग दोज पुशअप्स टू पीक परफॉर्मेंस मोड, तो वो एसोसिएशन आई हैव टू यूज. So I actually went next to the washroom और वॉशरूम के पास में I did 50 push-ups and then I came back and then I wrote the exam. तो अपनी बॉडी को ट्यून करो उस पीक परफॉर्मेंस मोड के लिए. अब वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है. फॉर मी इट वॉज पुशअप्स, मे बी फॉर समबडी इट इज मेडिटेटिंग, मे बी फॉर समबडी इट इज थिंकिंग ऑफ अ सॉन्ग दैट दे लाइक. बट वो जो रिलैक्स्ड फोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड है, उसको अचीव करने का कोई ट्रिगर क्रिएट करो और वो एक प्री एग्जाम रूटीन से हो सकता है. दिस कैन एक्चुअली एंड अप हेल्पिंग यू लॉट. Somebody who has not prepared much until this point and has 30 days left. Just give mocks. That's what. It's gonna help you a lot. Just give mocks. Leave everything out. Leave everything out. Just give mocks. Let's give mocks then. हाँ ठीक है भाई. क्वांट्स में अर्थमेटिक अलजेब्रा देख लो, DLR पूरा देख लो, इंग्लिश पूरा देख लो. पॉसिबल है 30 दिन में देखना, हो जाएगा, कुछ नहीं होता.